So guys, this is a big breaking update regarding SCL Tech. You all know that you are not able to apply because there is one time application already uploaded the video about the SCL Tech assessment mail, and many student or candidate said please upload the video how to apply. So I'm giving you step by step. Just to follow this. If it's work, then definitely you can apply within immediately, as you can easily apply immediately. And I already provide you the both a link in this डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मतलब एक के लिए तो अप्लाई कर लोगे विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, बट दूसरे के लिए नहीं कर पाओगे. दैट इज़ वन टाइम हायरिंग एंड दैट इज़ मास अपॉर्चुनिटी. तो अब ध्यान देना, इफ़ यू आर फेसिंग द वन टाइम एप्लीकेशन इशू वेयर यू कुड नॉट विड्रॉ और री अप्लाई, नाउ इट हैज़ फाइनली been resolved. Now you can delete or withdraw your application within 24 hours and apply again properly. Now how to withdraw, I will tell you, but important condition. If you recently created your profile new application, no need to delete anything. You are already good to go because you have to just wait for your turn. This is batch wise. This is clearly that if you applied first time and a new application already completed, तो यहाँ पे से वेट करना है. You have applied earlier 24, 25, 26 batches. Now you have to keep in mind. अगर तुम पहले अप्लाई कर चुके हो, now this is the main thing you have to keep in mind. Did not get any test mail, cannot withdraw your application, profile is stuck, then you must delete your old data profile to apply again. Now I am giving you how to delete, how to withdraw your SCL application, previous application, step by step. Go to SCL data privacy portal. This is the SCL privacy portal. In privacy statement for personal data is already there. मतलब ये है ही बनाया ही इसलिए गया है. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या था. नाउ व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप, सेलेक्ट आई एम अ कैंडिडेट. अब यहाँ पे फाइंड करना होगा कि वेयर इज़ आई एम कैंडिडेट, वेयर इज़ द कैंडिडेट, आई एम अ कैंडिडेट. तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पे एस सी एल टैग में सिंपल सी बात है, मैं फिर से दिखा देता हूँ. यू हैव टू गो टू द पोर्टल, एस सी एल डेटा प्राइवेसी पोर्टल. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन. थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ध्यान देना कि क्या लिखा है. विद होम डू वी शेयर योर पर्सनल डेटा. यहाँ पे देखो डेटा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट पोर्टल इज़ देयर. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस. You will redirect to this page. Now who I am a candidate. Click on this and select request type. What is the request type? Data deletion. Data deletion is the main thing. Now follow the process. Data deletion. Choose request data deletion. So I am clicking on data deletion. Now what we have to give. अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे, फोर्थ स्टेप इज फिल योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. इफ़ योर प्रीवियस ईमेल आईडी, मतलब जो भी ईमेल आईडी थी एप्लीकेशन की, वो अपन को देना है. एप्लीकेशन आईडी इज़ कंपलसरी, basic detail is compulsory. So after filling this all form, I will click on this captcha, fill this captcha. This is not मतलब ये अभी के लिए तो फ़िलहाल बंद है, वैसे भी कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी. दैन क्लिक ऑन सबमिट बटन. तो यहाँ पर ध्यान देना कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए. यहाँ पे देखो, इन रिक्वेस्ट राइट समथिंग दैट अनेबल टू विड्रॉ एप्लीकेशन, प्लीज़ डिलीट माई प्रोफाइल सो आई कैन री अप्लाई. ये कहाँ पे लिखना है गाइस, तुमको यहाँ पे लिखना होगा रिक्वेस्ट डिटेल में. Then submit the form. What happen after 24 hours? Within 24 hours, your data gets deleted. You will receive confirmation mail. After that, your mobile email will show not registered. Now you can create a fresh profile and apply again. ठीक है, तुम फिर वही ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो. मेरे हिसाब से तो न्यू वाली करोगे ज़्यादा बेटर है, बट हाँ, फ़ोन नंबर तुम वही यूज़ कर सकते हो. इतना कुछ उस नहीं होगा उसमें. Important tips: always use the same registered email ID and keep your application ID. Don't try to edit data. Deletion is the only working fix. Final advice: this is a huge opportunity reset for all candidates who were stuck earlier. Now apply properly and don't miss the chance, guys. Stay active, stay updated, and keep checking your mail regularly. But keep in mind कि मैंने तुम्हें क्या स्टेप्स बताया था. अभी के लिए समझो कि डेटा प्राइवेसी. क्लिक ऑन दिस, स्क्रॉल डाउन एंड चेक. देयर इज रिटर्न पर्सनल डेटा होम शेयर विथ एंड डेटा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट पोर्टल. यू हैव टू क्लिक, देन क्लिक ऑन आई एम अ कैंडिडेट. डोंट करंट एम्प्लॉय अदर, इसमें कुछ भी मत करना. डेटा डिलीशन पे बस क्लिक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं. रिव्यू ऑटोमेटेड डेटा प्रोबेबिलिटी, ये सब डेटा एक्सेस, इस पर क्लिक नहीं करना. ओनली डेटा डिलीशन. देन यू हैव टू गिव योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम विच इज़ एग्जैक्ट सेम एज अ प्रीवियस एप्लीकेशन. और प्रीवियस एप्लीकेशन जिस ईमेल आईडी से था, उसी ईमेल आईडी को दोगे तभी डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला. कंट्री रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट है. एप्लीकेशन आईडी इज़ कंपलसरी, अदरवाइज दे विल नॉट डिलीट योर डेटा. नेम ऑफ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट विद होम यू हैव टू इंटरेक्टेड, ये कर देना. जॉब आईडी स्किप करना है. एंड ईमेल एड्रेस तुमको देना होगा जो भी तुमने दिया है. रिक्वेस्ट डिलीशन ऑफ, मतलब ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो जो मैंने बताया. अनेबल टू विड्रॉ एप्लीकेशन, प्लीज़ डिलीट माई प्रोफाइल सो आई कैन री अप्लाई इन द अपॉर्चुनिटी.
तो ये चीज़ें करनी है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कल कि भाई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म की एक हायरिंग चल रही है, गेट अपॉर्चुनिटी, हिट द अप्लाई बटन। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब पोर्टल की जो हायरिंग निकली है, मास अपॉर्चुनिटी, इन दैट यू कांट अप्लाई बिकॉज देयर इज ओल्ड एप्लीकेशन, दिस इज़ वन टाइम एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी। कैन ऑल्सो चेक कि ये वाली जो थी वन टाइम हायरिंग थी गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तुमको समझाया है इसमें। क्योंकि यहाँ पे एक आ रहा है कंसेंट फॉर्म बिफोर असेसमेंट, you have to give the consent, they are sending the consent form before assessment, in consent form there is the details you have to fill, ठीक है, उसके बाद ही तुमको यहाँ टेस्ट की मेल मिलेगी। तो वो नहीं देखा तो जाके देख लो, और रिसीव और विड्रॉ योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल, दिस इज़ द ओनली वे टू डू दिस। एंड अप्लाई विथ न्यू ईमेल आईडी, अप्लाई विथ न्यू फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर सेम होगा चल जाएगा, बट इस टाइम जो भी ईमेल आईडी को विड्रॉ कर रहे हो उस ईमेल आईडी से अप्लाई मत करना, न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई करने की कोशिश करना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर तुम अभी ओल्ड एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं करते हो और यू आर ट्राइंग टू अप्लाई विद अ न्यू ईमेल आईडी अगेन, सो इट डजेंट वर्क, ठीक है। ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये वन टाइम एप्लीकेशन है। जब वन टाइम है मतलब तुम नहीं समझो, तुम्हारा नेम सेम है, तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड सेम होगा तो वो डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक ओल्ड एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब ओल्ड एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ क्रिएट न्यू ईमेल आईडी एंड अप्लाई विद दैट वन। डोंट यूज़ दैट प्रीवियस ओल्ड एप्लीकेशन विड्रॉल ईमेल आईडी, ठीक है, उसको यूज़ मत करना। बस एक न्यू ईमेल आईडी का यूज़ करके, भले ही सेम नंबर हो, ओल्ड ईमेल आईडी वाला चल जाएगा, बट ईमेल आईडी मस्ट बी डिफरेंट। नाउ दिस इज़ द एग्जैक्ट वे यू हैव टू डू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टेप बाय स्टेप। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, तुम ईजिली कर लोगे। जो मैंने स्टेप्स बताए, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।